तो नगर ढिंढोरा पीटती के प्रीत न करियो को। We felt that Swami Vivekanand ji साक्षात, जिसे कहते हैं, he is there in front of us before our eyes. Actually, How did you make it happen? स्वामी जी हमारे मन में है, वो उसको कहीं से वो पहले 1-2 मिनट ही आपको शेखर सेन दिखेंगे, उसके बाद जो भी रोल करेगा अगर दिल से करेगा तो आपको स्वामी जी ही दिखाई देंगे। जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, कि जिसने भगवान रूपी अमृत चख लिया, पंजाबी में भी कहते हैं ना अमृत छक लिया। तो एक बार अमृत आपने छक लिया तो फिर वो आपको कोई दूसरी चीज में उतना मजा नहीं आता। तो मुझे भी लगता है कि इफ यू गेट द फील ऑफ दैट डिवोशनल ब्लिस, then you don't want to leave it for anything, for any cost. कि केवल चमक दमक से बर्तन पात्र नहीं कहलाता, केवल चमक दमक से बर्तन पात्र नहीं कहलाता, और भड़कीले चित्रों का पोथा शास्त्र नहीं कहलाता, और मस्तक ऊंचा करके जब तक चले ना लोग वहां के, तब तक कोई देश साथियों राष्ट्र नहीं कहलाता। In the spiritual genre, you have done Tulsidas, you have done Kabir, I know you have done a lot of many other plays, and then coming to your musical videos also, you have composed a lot of music on the spiritual side. Anuradha Pondwal has been in association with you, I know Sonu Nigam, a lot of great artists, Alka Yagnik, who are from the mainstream Bollywood, they have connected with you. धन्यवाद है प्रभु, तो तुम हो संग तो नहीं कोई विषाद है। Hello everyone, we have today with us Padma Shri Mr. Shekhar Sen, who just gave a beautiful musical rendition of a wonderful play on Swami Vivekanand's autobiography. Thank you, sir, for being here in the Bay Area. Thank you to ICA, Indians for Collective Action, to have brought such a wonderful artist to the Bay Area. Welcome to Yo India TV with me, Jasleen Khanuja. And after this remarkable audience reaction, mind-blowing audience reaction, how is your feel? I feel always very grateful because I think the people of Indian origin who are in America or Canada or even in European countries, I always feel they are more Indians, they are better Indians than us because they really value the Indian culture in true sense, and they have the time and they are real good seekers, so they want to know everything, they want the answers for their questions. So it is always wonderful to perform in front of a very enlightened audience. In Bay Area, that way I have come so many times, and I always feel that Bay Area audience is wonderful audience. आपका नाम होगा स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और तब तक कर्म करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। देवी देवताओं को उठाकर ताक पर रख दो। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, गुरु ही लगावे बेड़ा। Nice, and you look so gorgeous in Swami Vivekanand's attire. You brought out the essence of the play. We felt that Swami Vivekanand ji sakshat, जिसे कहते हैं, he is there in front of us before our eyes. Actually, how did you make it happen? स्वामी जी हमारे मन में है, वो उसको कहीं से वो पहले 1-2 मिनट ही आपको शेखर सेन दिखेंगे, उसके बाद जो भी रोल करेगा अगर दिल से करेगा तो आपको स्वामी जी ही दिखाई देंगे, बिकॉज वो हमारे मन में शुरू से हैं, बसे हुए। तो मैं केवल ये करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं परकाया प्रवेश करूँ, मैं उनका जीवन जीऊँ, उनके आंसू रहूँ, उनकी हंसी हंसूँ, और वो जो संदेश
उन्होंने दिया था, जो कि एक सर्वकालिक सत्य है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र देने वाला ये सन्यासी था, तो उसकी बात पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए कि पूरी दुनिया जो है आज वो एक संसार है और एक ही परिवार है, और इसमें बहुत मतभेदों की अब जगह नहीं रही। पहले हम बहुत छोटे छोटे खानों में रहते थे तो शायद मतभेद हो सकते थे, पर अब तो पूरी दुनिया खुली हुई है, आप हर चीज पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। एंड जस्ट think about 1893, 125 years back, Swami ji could give the message of India. So बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि भारत में जितने भी हमारे संत हुए हैं, all the spiritual leaders, उन लोगों ने बहुत रोशनी दी है, बहुत प्रकाश दिया है, चाहे उत्तर के हों, दक्षिण के हों, पूरब के हों, पश्चिम के हों। मुझे लगता है we Indians are very fortunate that India is a country of spiritual energy. So, नमस्कार, मैं शेखर सेन। वॉच मी ऑन यो इंडिया टीवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि केवल चमक दमक से बर्तन पात्र नहीं कहलाता, केवल चमक दमक से बर्तन पात्र नहीं कहलाता, और भड़कीले चित्रों का पोथा शास्त्र नहीं कहलाता, और मस्तक ऊंचा करके जब तक चले ना लोग वहां के, तब तक कोई देश साथियों राष्ट्र नहीं कहलाता। को मिले रोटी न प्यासों को मिले पानी, ये कैसा न्याय है भगवन, जहाँ जीवन बेमान है तुमसे बस यही कहना, अगर तुम हो तो ये जो है ऐसा बाबला ना कोई, जैसे भगवान शंभु हो, जो नहीं मांगे जो नहीं मांगे जो नहीं मांगे उन्हें लुटावे ना हमारे तो पिया, जो नहीं मांगे उन्हें लुटावे ना हमारे तो पिया। डम डम डामरू डमक डम डमरू बजावेला हमारा जोगिया, डम 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 डमक डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, हमारे जोगिया। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो मैसेज है, जो ग्लोबल सिटीजनशिप की आज हम बात करते हैं, वो आपने बिल्कुल यहाँ की ऑडियंस तक पहुँचाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इस किरदार को निभाने के लिए और म्यूजिकली उसको इतना बेहतरीन तौर पे कंडक्ट करने के लिए, you were just a perfectionist, I would say. The acts you performed, the songs that you sang in between, they were so impeccably rendered out, it brought out the magic. So how much research went behind it? Swami Vivekananda took maximum time. It almost took 4 years for writing the play, and then 1 year to memorize it and compose the music and everything. But actually, any character, when you do the research yourself and you go and feel the actual essence of any character, it's very difficult, but then the character helps you. तो जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि भाई वो पहले तो हम उनकी उंगली पकड़ना चाहते हैं, फिर वो हमारी उंगली पकड़ के हमको मदद करते हैं। तो आई थिंक आई वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ स्वामी जी एज अ बंगाली, आई थिंक, बट आई एम बेसिकली आई एम अ म्यूजिशियन, आई एम अ ट्रेन्ड म्यूजिशियन and actor by accident, because I wrote all my plays, so everyone said यार इतना मुश्किल नाटक कौन करेगा 2 घंटे का, तुम ही करो। तो इसीलिए मोनो एक्टिंग, तो इसलिए मैंने कहा मोनो एक्टिंग करें। और मेरे जैसे नाटक करने के लिए यू हैव टू हैव कमिटमेंट। तो इसलिए अगर आपने देखा होगा तो मैंने कोई फिल्म नहीं की, मैंने कोई सीरियल नहीं किया, मैंने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की। आई एम अ वेरी लो प्रोफाइल आर्टिस्ट।
उसका फायदा मुझे ये हुआ कि व्हेन आई एम portraying Vivekanand, you feel as if Vivekanand is there because you have not seen me in any other filmy role. तो वो एक मैंने उस बात का ध्यान रखा कि I should just do theatre with 100% passion and commitment. मैं इतना जानती के प्रीत किए तो नगर ढिंढोरा पीटती के प्रीत न करियो को। छोटा सा शहर था रायपुर, छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की नगरी। खूब मेहनती लोग हर समय हंसते गाते रहते और शाम को थक के गोंदली छोड़ के कांसे की बाटी में बासी भात खाए। पढ़ाई का नशा मुझे लगा था रायपुर में। वहां पर कोई स्कूल तो था नहीं, तो बाबा की ही सारी पुस्तकों को चाट डाला था। पर मेरी शामें गुजरती थी वहां पर बूढ़ा तालाब के पास। हर एक शाम पीपल के नीचे भजन गाने वालों की मंडलियां वहां आकर के जमा हुआ करती थी। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता कैसा नाता कैसा नाता। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता। घासारे हार जरे जो लाकड़ी को केस जरे जस घासारे। सोना ऐसी काया जड़ गई, सोना ऐसी काया जड़ गई, कोई ना लो पास। लेकिन भक्ति रसी क्यों, यू नो, आजकल और भी जॉनरा है एंड वी हैव सीन यू मोर in the spiritual genre. You have done Tulsidas, you have done Kabir, I know you have done a lot of many other plays, and then coming to your musical videos also, you know, yeah, you have composed a lot of music on the spiritual side. Anuradha Pondwal has been in association with you. I know Sonu Nigam, a lot of great artists, Alka Yagnik, who are from the mainstream Bollywood. They have connected with you, right? Give us some insights into your genre. Lee, you have to understand one thing, that devotional music has been part of our life. वो मंदिर हो, वो गुरुद्वारा हो, वो समाधि हो, वो चाहे हिंदुस्तान में तो चर्च में भी गाना हो रहा है, हर जगह पर बिना संगीत की तो हमारे यहाँ कोई कल्पना नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जगह संगीत। और भारत की अच्छी बात यह है कि डिवोशनल म्यूजिक इज पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमारे यहाँ दुख में भी हम गाना गाते हैं, सुख में भी गाना गाते हैं, आनंद में भी गाना हर क्षण हमारे लिए संगीत का क्षण है। तो मुझे लगता है अब शायद मुझे भक्ति में ज्यादा आनंद आता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग दूसरा कुछ गा रहे हैं उनको मैं पसंद नहीं करता, मुझे वो भी अच्छा लगता है। पर एक सूरदास जी की पंक्ति है कि जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, कि जिसने भगवान रूपी अमृत चख लिया। पंजाबी में भी कहते हैं ना, अमृत छक लिया। तो एक बार अमृत आपने छक लिया तो फिर वो आपको कोई दूसरी चीज में उतना मजा नहीं आता। तो मुझे भी लगता है कि इफ यू गेट द फील ऑफ दैट डिवोशनल ब्लिस, then you don't want to leave it for anything, for any cost. So I think I am very grateful to God that he has chosen me to do all these things. जी, and I can actually feel your spiritual elevation as well, क्योंकि आप इतने connected रहते हैं, वो आभा जो है वो मुझे already feel हो रही है। मन लागो मन लागो मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मन लागो मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, फकीरी
मन लागो मेरो यार फकीरी में। मैया मोरी मैं नहीं माखन। एक और ब्रज को छोड़ हतो वाको लीला गाऊं कीर्ति सुनाऊं वाकी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु। अरे हमारी बहुत जमती थी श्याम सखा से, हमने कही दी बात। राधा जी को आप संभालो, हमको बस आराधना दे दो। So being a Bengali, what kind of musical education were you exposed to? Were you more into Rabindra Sangeet or into North Indian classical music? Both my parents were classical singers of Gwalior Gharana. They both were doctorates and Sangeet, Bisharad and Kovid and all this. So they both were wonderful. My mother was top grade singer. She was a Thumri, कजरी, चैती, टप्पा सिंगर. माई फादर वॉज ख्याल सिंगर. तो हमारा जो घर था, माई फादर वॉज प्रिंसिपल ऑफ ए म्यूजिक कॉलेज. तो म्यूजिक कॉलेज कैंपस में ही हम बड़े हुए. तो वहाँ बचपन में हमको मतलब संगीत ही घुट्टी में मिला. तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल, नॉर्थ इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. और बीइंग अ बंगाली आई वॉज फॉर्चुनेट टू लर्न रविंद्र संगीत एंड अदर म्यूजिकल फॉर्म्स ऑल्सो. एंड माई मदर वॉज तेलुगु, सो कर्नाटक effect was also there, and we were in Chhattisgarh, so folk. So I was very fortunate to get exposed to all kind of all genres of Indian music. और उसके बाद भी मुझे लगता है कि I don't know much of, क्योंकि हमारा ट्रेजर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ट्रेजर है. जितना कर पाते हैं, फिर भी मैं रोजाना जब मुंबई में रहता हूँ तो 6 से 8 घंटे रिहर्सल होती है. Because this kind of play need a lot of rehearsal and commitment. I mean, you cannot do 10 things and do this drama. You have to do the rehearsals religiously. So. आग उतनी ही जलाओ जो बुझा सको, आग फैल जाएगी तो तुमको भी भस्म कर डालेगी। अरे बावलो, हमको पगला कहते हो, हम तो हैं ही पगले। उसके पग में लगन लगा के घूम रहे हैं मस्ती में। हमका उड़ावे चदरिया रे चलती बिरिया, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। So any of your favorite lines which you want to sing for our audience? For singing, okay. When Swamiji met Thakur for the first time, so this was the song he sang, and that I use also in my play. And that's a Bengali song, but people who know the life sketch of Swamiji, they will really enjoy it. Mono cholo nijo niketone, সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে, মন চলো নিজ নিকেতনে। Awesome, बहुत cool. I can feel the depth because music has no barriers. That was phenomenal. Beyond language, beyond any boundaries. So music is music. Music it's in the international language. हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने कोई। मेरी मैं तो प्रेम दीवानी
जिन लाई हो, घायल की गत घायल जाने की जिन लाई हो, जौहरी की गति जौहरी जाने, जौहरी की गति जौहरी जाने की जिन जौहर होए एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द ना जाने। So, any message to Yo India TV viewers? There is one message to all the viewers that please appreciate good music, good dance, good theatre, anything good from your culture or any other culture. अच्छाई को बचाने की बहुत ज़रूरत है ताकि अच्छा बचा रहे आपके बच्चों के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। थैंक यू सो मच। हमारे बुजुर्गों ने पेड़ लगाए थे इसलिए हमको आम मिल रहे हैं, हमको भी पेड़ लगाने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को उसके फल मिले। बहुत खूब, very well said, and thank you again so much for your time and you, for the wonderful magic that you created here in the Bay Area. थैंक यू सो मच एंड मेरा प्रणाम आप सबको। नमस्कार, मैं शेखर सेन। वॉच मी ऑन यो इंडिया टीवी। ओ मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, ओ मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का गंभीर स्वर गूंजा। हमारे धर्म संस्कृति पर छा रहे संकट को समझने की आवश्यकता है। एक ऐसे मंदिर को बनाने की आवश्यकता है जो कोई तोड़ न सके। कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं। मन लागो मेरो यार फकीरी